Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। We welcome you for today's Bible study. आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका स्वागत है। I ask God to anoint the word today और हम परमेश्वर से मांगते हैं आज के वचन पर अभिषेक देने के लिए, may we gain understanding, ताकि इस वचन का समझ हमें मिले। the times and seasons. समय और सारे मौसम की समझ हो। May God unfold the things that is written in His word to each one of us. और परमेश्वर के वचन का प्रकटन हम सबको मिले। And may we be strengthened by His word. और उसके वचन से हम सब दृढ़ हो जाए। To God be the glory, और honor and सारी praise. महिमा, स्तुति, आराधना परमेश्वर की हो। Amen. आमीन। I just want to encourage you with one fact एक सत्य से आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं that the Church of Jesus Christ is winning. कि यीशु मसीह की कलीसिया जीत के रास्ते पर है। Today's message is things that will happen in the last days. आज के शिक्षण का शीर्षक है आखिरी दिनों में क्या होगा। The word may seem to be a little offensive in a sense that in the last days many negative things will happen. बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में, जिन दिनों में अब हम रह रहे हैं, बहुत ही दुष्ट बातें होंगे, बुरी चीजें होंगे, जिसका जिक्र है। From the time Jesus was taken up into heaven, और जब से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग गए, and He वापस, promised that He would come the same way, और जाते समय उसने हमें जो वादा भी दिया कि जैसे वो जा रहा है स्वर्ग में, वैसे ही स्वर्ग से आएंगे। the Church of Jesus Christ was established when Pentecost came. और पेंटिकॉस्ट के दिन से यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना हुई। But the apostles at that time were still waiting that their Lord would come back. फिर भी शिष्य रुके हुए थे ये जानकर कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। They all felt that at that time there was also persecution, there were all kinds of trials, there were all kinds of things happening, and they were continuing to wait that as Jesus spoke, He would come. हालांकि उन दिनों में बहुत सारे संकट का सामना, मुश्किल दिनों का सामना शिष्यों ने भी किया। फिर भी उन मुश्किल दिनों के होने के बावजूद वो यीशु मसीह के आगमन का इंतजार भी कर रहे थे। But they still continued to work in the kingdom. और परमेश्वर के राज्य में जो कार्य वो कर रहे थे उनको जारी रखा। At the same time, they continued to be prepared for the coming things. साथ ही साथ आने वाले चीजों के लिए भी अपनी तैयारी की अपनी ओर से। The same thing was with Apostle Paul. पौलुस के साथ भी ऐसा ही था। So many were waiting, but yet doing the work and getting themselves prepared. तो बहुत लोग इंतजार भी कर रहे थे यीशु मसीह के आगमन के लिए और साथ ही साथ खुद को तैयार भी रख रहे थे। It has been 2000 years since Jesus came. यीशु की धरती पर आने के बाद 2000 साल ऊपर हुए हैं। And people now think they still got a lot of time. और लोग सोचते हैं कि अभी भी समय है। But if you see 2 Timothy 3, verse 1 onwards, लेकिन 2 तिमोथी 3 अध्याय और पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे, it says, "But know this, that in the last days perilous times will come. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power,
and from such people turn away. Till verse 5. 1 से 5वें वचन तक हम जो पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढोंगी मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्रता, प्यार रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले लोग, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन खुश विशाल ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। So, you see, there's such characteristics that are displayed in the end times. तो हम देखते हैं ये सारा जो वर्णन किया गया है आखिरी दिनों के बारे में कि ये सारी चीजें होंगी। It is not that it was not there before, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें पहले नहीं थी, but it will increase in momentum as we are coming closer to the return of our Lord Jesus. लेकिन वही बातें आज के दिनों में बहुत ज्यादा जो बढ़ गई है, खास करके जैसे जैसे हम यीशु मसीह के वापसी के दिन के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे दुष्टता जो बढ़ रही है। Whether it's outside or within the church, you will see many things happening. और चाहे दुनिया में हो या कलीसिया में हो, ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती है। Apostle Paul is a father figure to Timothy. और पौलुस प्रेरित जो है वो तिमोथी के आत्मिक पिता है। Apostle Paul had a direct revelation from Jesus himself on the road to Damascus. और पौलुस प्रेरित को यीशु मसीह के द्वारा व्यक्तिगत प्रकटीकरण मिला था। And he continued with his journey in serving God from that time onwards. और उस दिन से पौलुस प्रेरित ने यीशु मसीह की सेवा जो करना शुरू किया उसने जारी रखा। He started establishing, planting churches and expansion. All of these things was happening. और परमेश्वर की सेवा की इसी भावना में उन्होंने काफी सारी जगह पर कलीसियाओं की स्थापना की, लोगों को बाइबल के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में चीजें सिखाई। But at the same time, he faced a lot of challenges from different kinds of people. साथ ही साथ अलग अलग लोगों से मिलकर अलग अलग जगह से उन्होंने बहुत सारे मुश्किलात के दिनों का सामना भी किया। As a father would address to his son, Apostle Paul is addressing to Timothy, his son in the Lord. और इसी कारण से पौलुस प्रेरित तिमोथी को, अपने आत्मिक बेटे को, आखिरी दिनों की जो समझ दे रहा है और इस जो पत्र में इन सारे बातों का वर्णन तिमोथी को वो समझा रहा है कि कैसे होंगे आखिरी दिन। He is telling him the climate of the last days. पौलुस उसको बता रहे हैं आखिरी दिनों का वातावरण। He says, know this. It means try to understand this. और वो कहता है ये जान लो, ये समझने की कोशिश करो कैसा होगा। Paul is actually saying, I may not be there. I may be on my missionary trip or I may never be there, but you need to understand this and take it forward. और जो है पौलुस तिमोथी को जैसे समझा रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये आखिरी दिनों की समझ को जो है आपको आगे सिखाना है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो तैयार रहे इन चीजों के। Apostle Paul had handed over the baton to Timothy now. और जो है पौलुस ने अपनी सेवकाई का जो रास्ता तिमोथी के हाथों में सौंपा। He's telling them that in the last days it is going to be very difficult to even be a Christian in that sense. और इसीलिए पौलुस तिमोथी को कहते हैं कि आखिरी दिन जैसे जैसे यीशु का आगमन जो करीब आता है, आखिरी दिनों में और ज्यादा मुश्किलात जो बढ़ेंगे। The scripture doesn't show anything encouraging. और ये पूरे जो 5 वचनों में
कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है कि हो रहा हो। It shows more of the negative part that's going to happen. ज्यादा करके सारी बातें नकारात्मक बातें हैं जो होंगे आखिरी दिनों में। But the great encouraging part is that we have the Holy Spirit within us. तो हमें उत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा है, हमें चीजों का आश्वासन देने के। At the same time, we must also keep in mind that about the state of Israel. साथ ही साथ इजराइल राष्ट्र का परिस्थिति भी ध्यान में रखना है, Because everything will move with time now. क्योंकि सारी बातें समय समय से चलती है। So, perilous times means difficult times, troublesome times. तो संकटपूर्ण दिन यानी कि कठिन दिन, दुखदाई दिन, It will become uneasy for people. और लोगों के लिए जो तनावपूर्ण और बेचैनी के दिन होंगे। It would be hard, it would be violent, there would be so much corruption, everything negative would start increasing. ठोस दिन होंगे, हिंसक दिन होंगे, यानी कि जो है सारी दुष्ट चीजों की जो बढ़त होगी। People would be threatened. और लोगों को जो है धमकी भरा चीजों का सामना करना People will be पड़ेगा। confused. पेचीदे दिन होंगे वो। Jesus himself said, I am the way, the truth and the life. There will be confusion now. और ये सारे पेचीदे दिनों के बावजूद यीशु का कहना हमें याद रखना है कि यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूँ। But those who are faithful to the end, they will complete the race. और जो विश्वसनीय रहेंगे प्रभु के प्रति वो अपने दौड़ को पूरा करेंगे। When we speak about perilous days, it also means painful days. और जब हम कहते हैं संकटपूर्ण दिन यानी कि दर्दीले दिन, It would be unexpected days. यानी कि अपेक्षा नहीं करेंगे ऐसे दिन होंगे। It would be fierce, it would be grievous. उग्र दिन होंगे, दुखद दिन होंगे। It would be hard to deal with. और ऐसे दिनों को संभालना जैसे मुश्किल है, ऐसे दिन होंगे। When we say perilous times, it speaks about a time, a season that would increase in all kinds of negative things that are around you. तो संकटपूर्ण दिन यानी कि सारे नकारात्मक चीजें हमारे चारों ओर दिखने को मिलेंगे। It is not good to hear, it doesn't sound good to the ears. और ये सब जैसे हम जो पढ़ते हैं तो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे दिन होंगे, We want to hear about God's love, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में ही सुनना चाहते about हैं। His comforting touch, about His healing, about His deliverance. Everything of that is in its place. उसकी सांत्वना के बारे में सुनना चाहते हैं, उसके प्रेम के बारे में, दया के बारे में, ऐसे जो है सकारात्मक बातें हम सुनना पसंद करते A हैं। coin has two sides, a head and a tail. जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, Today is another side of it. वैसे ही आज जो है हम शिक्षण का जो है कठिन जो मुख देख रहे हैं कि किस प्रकार से कठिन दिनों के बारे में भी जो वर्णन किया गया है कि ऐसे दिन भी होंगे, They are determined days. क्योंकि ये सारे दिनों को जो है निर्धारित किया गया है। It says that these days will come. That means we are heading, either we are in it in some magnitude, and it will increase. और ये सारे दिन जो निर्धारित किए गए हैं, ये जो है या तो जो है उसकी जो बढ़त होगी, इन सारी दुष्ट चीजों की जो है जो बढ़त होगी इन आखिरी दिनों में, क्योंकि दुष्टता उतनी जो बढ़ने वाली है। It will be stressful, it will be pressured. और इसलिए उसका जो दबाव हम महसूस भी करेंगे, लिखा है। Because of all this, lot of things can really evolve within us. और इस सब ये सब चीजें जब होती है तो हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें निकल सकती है। Praise God that we've got the warnings beforehand. और प्रभु की स्तुति की ये सारी चीजों की चेतावनी बाइबल हमको देती है कि हम चेतावनी से अपने जीवन जिए। Look at the news and the things that are going around the world. पूरी विश्व भर में हम देखेंगे तो इतनी चीजों के बारे में लोग कहते रहते हैं। We hardly find any good news. और आजकल अच्छी खबरें बहुत ही कम सुनने में आता है। That's why we need to go back to God's word. और इसलिए चीजों की समझ पाने के लिए वचन से ही समझना जरूरी है, So that we can get enlightened and comforted. क्योंकि वचन के द्वारा ये सारे वातावरण के बावजूद
सांत्वना प्रभु के वचन से हमको मिल सकता है इन दिनों के लिए, There is man's wickedness that is growing. क्योंकि मनुष्य की दुष्टता बढ़ रही है Sin has been increasing. और जो पाप भी जो दुनिया में जो बढ़ रही है, The love for God has gone cold. परमेश्वर के लिए वो प्यार ठंडा पड़ रहा है। I'm explaining verse to verse 2. दूसरे वचन में आए हैं, अब हम एक एक शब्द करके उसका समझ हम लेंगे कि ये सारी एक एक चीज कैसे आज के दिनों में दिखाई दे रही है हमें। There are 18 characteristics, things that will happen. और जो है 18 जो बातें आखिरी दिनों के बारे में जिनका वर्णन दिया गया है इन वचनों में, Or it will increase. और लिखा है ये सारे नकारात्मक बातें जो बढ़ेंगी आखिरी दिनों में। The first one is lover of self. सबसे पहले है स्वार्थी। Why is Paul giving us such things? तो पौलुस ये सारी बातों का वर्णन क्यों दे रहे हैं? Why? Because things have started creeping into the church, into the body of Christ. क्योंकि ये सारी चीजें कलीसिया के अंदर भी घुस रही थी, The enemy is against the image of God. क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप के विरोध है। And when you say for men will be lovers of themselves, that means men have yielded to the things of the enemy. यानी कि जो है इसका मतलब कि मनुष्य ने खुद को शैतान के हवाले किया है। So, lovers of self means selfish. तो स्वार्थी यानी कि खुदगर्ज, They look for their own interest. यानी कि वो अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। If you see Philippians 2 verse 3, फिलिपियों दूसरा अध्याय और तीसरा वचन हम देखेंगे। let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। It's saying, don't be selfish in one sense. Don't live to make a good impression on others. मतलब कि वो लिखा गया है कि जो है खुद के लिए आपको नहीं जीना है और खुद की जो बड़ाई दूसरों के सामने करने के लिए नहीं जियो। Be humble, thinking of others better than yourselves. दीनता में रहो और दूसरों को अपने से बेहतर समझो, लिखा है। So we need to understand that now, in getting closer to God, people are going away. यानी कि जैसे जैसे दिन करीब आते हैं, मसीहियों को परमेश्वर की ओर करीब जाना चाहिए, ना कि परमेश्वर से दूर इन चीजों में बहकर। People are thinking more about themselves. लोग आजकल खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। Within the church fraternity, they're never thinking about the body of Christ. खुद के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि कलीसिया के पूरे देह के बारे में, कलीसिया में जुड़े हुए सारे लोगों के बारे में सोचना है। They are more focused on themselves. क्योंकि हमें जो है खुद के बारे में ही जो है खुदगर्ज नहीं बनना है कि खुद के बारे में सारी बातें सोचना। But if you see how the apostles did after Jesus, is they went out. क्योंकि यीशु के जाने के बाद जो है शिष्य जो है यरूशलेम के बाहर गए, लोगों को भी सुसमाचार दिए। They knew exactly what they needed to do. वो जानते थे कि उनको क्या करना जरूरी है। The important thing is you need to get out of self. और इसके लिए हमें जो है खुदगर्ज होकर नहीं हम जी सकते हैं, हमारे खुद के लिए सोच निकालना है और दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना। But here in the last days, the lovers of themselves will get more. लेकिन यहाँ लिखा है कि अंतिम दिन जब करीब करीब जैसे आता है, वैसे वैसे लोग खुद के बारे में ही सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं। They will not be bothered about each other. यानी कि आखिरी दिनों में लोग एक दूसरे के बारे में सोचना जो बंद करेंगे। That means love has gone cold. मतलब कि एक दूसरे के प्रति वो प्रेम जो है वो ठंडा पड़ेगा। Yes, there will be good people. हाँ, ऐसे लोग भी होंगे जो विश्वसनीय रहेंगे। But we do not know all these things will happen and it will unearth people's wickedness. लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कौन कौन जो पलटने वाले हैं और विश्वसनीय कौन रहेगा आखिरी तक,
कौन अचानक से बदलेंगे हमें नहीं पता। That's why I said earlier that it would be confusing days. और इसलिए हमने कहा कि ये जो है पेचीदे दिन होंगे जहाँ चीजें गड़बड़ी दिखेंगी। You may have not expected that particular person, but that particular person has come out like that. तो आप ऐसे सोचेंगे भी नहीं कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसे करेगा, लेकिन होंगे ऐसे भी आखिरी दिनों में। In the times to come, things will start changing. Man will become corrupt. Their hearts will get corrupted. क्योंकि आखिरी दिनों में वचन कहता है कि ऐसी चीजें होंगे क्योंकि मनुष्य का हृदय दुष्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से वो ऐसा करना शुरू करेगा। Their thoughts would be infested with demonic powers. और उनका जो सोच जो है दुष्ट शक्ति की पकड़ में होंगी, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें करना शुरू करेंगे। They would start hearing the lies of the enemy. I'm talking of people mostly within the church. और जो है शैतान का जो सोच जो शैतान ने उनके मन में डाला है, उसको लेकर के वो जो है अपना जीवन जो बिताना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें होंगे, लिखा गया है खास करके कलीसिया के अंदर जो लोग हैं उनके जीवन में ऐसा हो सकता है। There would be lovers of money. और फिर वो जो लोभी होंगे, जो पैसों से प्रेम करने लगेंगे। We need to understand they would be covetous. This would increase. और उनका जो लालचीपन जो बढ़ेगा। Their mind would be set on money matters. यानी कि जो है पूरा दिन वो सिर्फ जो पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे। God would be removed. यानी कि जो परमेश्वर उनके जीवन से हटेगा और जो पैसा वो जगह लेगा। And you will understand this in the coming days. और जैसे जैसे दिन आखिरी दिन जो करीब आते जाते हैं, ये सारी चीजें और ज्यादा देखने को मिलेंगी। These kind of people will drift away from the church, from the body of Christ. और दुखद बात है कि ऐसे लोग जो है मसीह के देह से दूर होते जाएंगे। But we also must understand that God is refining. ये बात भी हमें समझना है साथ साथ कि ये जैसा हो रहा है वैसे वैसे परमेश्वर अपने कलीसिया का शुद्धिकरण भी कर रहा है, जो है जो पवित्र चीजें जो विश्वसनीय लोगों को अलग कर रहे हैं। God is sorting the goats and the sheep. क्योंकि भेड़ और जो बकरी के बीच में जो है दोनों को अलग किया जा रहा है इन दिनों में। People are going to go through the refining fire, that means the furnace. और शुद्धिकरण के आग के जो है द्वारा के बीच में से हो जाने के बाद भेड़ और बकरी अलग किए जाएंगे। It's not about singing good songs. It's not about all these other things. It is the time and the season that we are going to be tested in. और इसलिए सिर्फ अच्छे गीतों को आप जो गा रहे हो यही करना काफी नहीं है। आपका जो है जीवन का गुण विश्वसनीयता वो प्रभु के प्रति रखना जरूरी होगा। When I'm saying lovers of money, the person's focus has been changed completely, dramatically, drastically. जो पैसों से प्रेम करने वाले लोग जो बढ़ेंगे, यानी कि अपना ध्यान प्रभु से हटाकर जो पैसों को बटोरने में ही पैसों पर अपना मन अपना हृदय लगाने में जो डालेंगे, यानी कि ऐसे दुष्ट दिन शुरू होंगे। And those we felt that they were harmless would be the most harmful. और हो सकता है कि हम जो सोच रहे थे कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, अलग है, शायद वो ही लोग जो है हमें जो दर्द दे या हमें धोखा दे सकते हैं। So lovers of money means running after money. तो जो पैसों से प्रेम करते हैं, यानी कि पैसों के पीछे भागना शुरू किए हैं। So the next one is boasters. अगला है ढींग मार। That means they are empty within. यानी कि अंदर से वो असल में खाली है। They are hollow. खालीपन उनके अंदर है असल में। They are pretenders. और वो ढोंगी की तरह है। They are bragging in what they do. और जो काम वो करते हैं उसको जो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं दूसरों। They always want to be on top. क्योंकि वो खुद को ऊपर रखना चाहते हैं। See, we need to understand one thing. Whatever we do in the Lord, glory must go to Jesus. हमें एक बात समझना है कि परमेश्वर के राज्य में हम जो भी काम करते हैं उसके लिए महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए, किसी जो मनुष्य के लिए नहीं। Why I am continuously saying about boasting? Because people have given their mind, allowed their mind
to become a loophole for the enemy to come in. ढींग मार का मतलब है कि जो है ऐसे लोग जो अभी खुद की बड़ाई करने में अपना मन लगा रहे हैं, प्रभु की सेवा में जो है नम्रता से एक सेवक का हृदय त्याग कर जो है खुद की बड़ाई करने में जो लगे हैं, ऐसे ढींग मार लोग जो सिर्फ जो है अब ऐसे हो गए हैं दुष्टता आने की वजह से। That means it was all false humility. यानी कि जो है उनकी जो नम्रता थी वो जो है ढोंगी पन में उनकी जो नम्रता थी वो असल में वो नम्र नहीं थे। That all this time they were just faking it. यानी कि इतने समय तक वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे कि वो नम्र है, लेकिन असल में उनका हृदय से वो नम्र नहीं थे। It is very painful to hear these things. और ऐसे सारी चीजें होंगी, ये सुनने के लिए जो है इतना जो बुरा लगता है कि ऐसा भी होगा, वो भी मसीही लोगों के जीवन But में। such things will increase. लेकिन बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में ये सारी चीजें होना शुरू होगा। So Paul is telling Timothy to understand that means don't get surprised. These things are bound to happen. यानी कि पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें होंगी, इसलिए जब भी ये होगा तो आप अचंभित मत रहो, क्योंकि ऐसी चीजें होने वाली है। इसकी अपेक्षा तुम करो कि ऐसे आपको देखने को मिलेगा। That means the next one, there another characteristic, there will be pride. अगला बात जो लिखा है अभिमानी होंगे। Now, what is pride? It is an overestimate of one's worth. अभिमानी यानी क्या? यानी कि आप एक व्यक्ति का ज्यादा ही जो मूल्य जो लगाते हो। The Bible says in Proverbs 16:18 that pride goes before destruction. नीति वचन 16:18 में लिखा गया है कि जो अभिमान है वो नाश के पहले जाता है। So we need to understand there would be a haughty spirit before a fall. यानी कि जो है एक दुष्ट जो है दुष्टता उनके अंदर आता है, जिसके वजह से वो गिर जाते हैं। See, pride. There are different kinds of pride in a way. Let me tell it. और जो है अभिमान अलग अलग प्रकार के स्तर पर होता है। Some who show it openly. कुछ लोग जो है खुले रीति से दूसरों को बताते हैं। Some it is very difficult, but it is inside. कुछ लोगों का अभिमान उनके अंदर होता है, बाहर से वो दिखाते नहीं है, लेकिन असल में उनके हृदय में वो अभिमान होता है। Only God will expose that pride. और सही समय में परमेश्वर ऐसे लोगों का खुलासा करेगा। That's why we need to be very careful how we need to discern people. और इसीलिए लोगों की जो परख करने में बहुत ही जो है ध्यान देकर हमें चलना पड़ेगा। They may be around you. क्योंकि शायद ऐसे लोग तुम्हारे चारों ओर ही होंगे। They may be calling you. शायद वो आपको फोन भी करते रहेंगे। They may be talking things to you and to others about you. ऐसे लोग आपके पास आकर आपके साथ जो बात करेंगे और दूसरों के घर जाकर आपके बारे में बात करेंगे। So ऐसे लोग होते we हैं। need to understand that in these days all these things will increase. तो आखिरी दिनों में ये सारी दुष्ट चीजें बढ़ेंगे, ऐसा लिखा है कि ऐसा होने वाला है। The next one is blasphemers. आगे लिखा है ऐसे लोग निंदक होंगे। It says given to defiant and bitter type. यानी कि ऐसे लोग विद्रोही होंगे और कड़वी बातें करने वाले लोग। That means the words would be bitter. यानी कि उनके शब्द बहुत ही कड़वी होती है दूसरों के प्रति। It's actually coming from rebellion. और ये जो है विद्रोह में से निकलता है। No respect. दूसरों के प्रति आदर नहीं। Coming against leadership. अगुओं के विरोध में वो आते हैं। Coming against authority. अधिकारियों के विरोध में ऐसे लोग आते हैं। Disrespect. कोई जो है आदर दूसरों को नहीं देते हैं। Speaking evil against another. या दूसरों के बारे में दुष्ट चीजें कहते रहते हैं। I call that gossip. In one sense is very small where blasphemers are there. यानी कि ऐसे निंदक लोग जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं Carrying tales and rumors to suit your benefit. और दूसरों के बारे में गलत चीजें और कहानियां लेकर के जाते हैं, खुद की जो है जो बढ़त करने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं। Because such people are idle.
people. क्यों ऐसा वो करते हैं? क्योंकि उनको करने के लिए कोई काम नहीं। See, when you don't do the work of God, you are actually doing some other work. क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य का काम नहीं करते हो तो आप कोई दूसरा जो है दुष्ट काम करना शुरू करते You are doing the works of the flesh. शरीर के लालसाओं में फंसते हो You are doing the works of the enemy. और शैतान के कार्य करना शुरू करते हो। Many a time the Pharisees came against Jesus. वैसे ही बहुत सारे फरीसी लोग भी यीशु के विरोध में आए And Jesus was very straightforward. और यीशु सीधे सीधे उनको कहते थे He says, your father is the devil और उन्होंने एक बार कहा कि तुम्हारा पिता जो है शैतान है because you are doing his works. क्योंकि तुम शैतान के कार्य करते हो You are coming against kingdom work. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के विरोध में तुम कार्य करते They were हो opposing Jesus who had come to do the will of the Father. क्योंकि ये फरीसी लोग यीशु मसीह के कार्यों के विरोध में हमेशा जाते थे जो पिता की इच्छा करने आया They looked spiritual. वो ऊपर से धार्मिक दिखते हैं They looked good. बाहर से वो अच्छे दिखते हैं धर्मी But दिखते हैं Jesus called them, you are like whitewashed tombs. लेकिन यीशु ने कहा कि तुम जो है धुले हुए कब्रों की तरह हो You are like vipers. जैसे सांपों की तरह हो They were very hard words that Jesus used, but that is the truth. तो यीशु ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ऐसे लोगों का वर्णन करने के लिए जो असल में वो लोग ऐसे थे ऐसे In fact, Apostle Paul is paraphrasing everything to Timothy, his son. और In पौलुस the Lord. यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं आखिरी दिनों की जो है दुष्टता का स्पष्टीकरण पौलुस यहाँ कह रहे हैं तिमोथी को सिखाने के लिए कि ऐसे दिन होंगे One thing about blasphemers, they always think they are right. और ये जो निंदक होते हैं वो सोचते हैं कि वो ही सही है और दूसरे गलत This is like a righteous spirit. यानी कि एक जो है धर्मी जैसा जो है आत्मा होती है We उनके need to अंदर understand that this kind of religious spirit is very bad. और ऐसे गलत जो है धार्मिकता उनके अंदर होती है ये सबसे खतरनाक होता है Our righteousness comes from the Lord. क्योंकि हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से आती है We are clothed by the robes of righteousness. और यीशु मसीह के धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए गए हैं So here they have become defiant. लेकिन यहाँ पर वो दुष्ट धार्मिकता में विद्रोही हो गए Like the sons of Korah who came against Moses. जैसे कोरा के पुत्र जो मूसा के विरोध में आए We'll get worse than that in these coming days. उससे भी ज्यादा दुष्ट लोगों का सामना हम करेंगे People rebelling in the body of Christ openly. मसीह के देह के अंदर भी ऐसे लोग उभरेंगे जो मसीही लोगों के विरोध में यीशु के विरोध में कार्य करेंगे Defying the servants of God. और परमेश्वर के दासों का विद्रोह करेंगे Coming against the work of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कार्यों के विरोध में काम करेंगे Not only that, but taking people out from the things of God. उतना ही नहीं लेकिन दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के रास्तों से निकालेंगे The next one is disobedient to parents. अगला है माता पिता की आज्ञा टालने वाले Now this was there right in the Old Testament law. ये हम देखते हैं पुरानी नियम के आज्ञाओं में भी लिखा गया What है it really means. तो उसका मतलब क्या है It means to reject Christian values that reach into the home. इसका मतलब है कि मसीही जो मान्यता जो परिवार में है वो निकालना That means the world has also crept up into family life. यानी कि संसार की चीजें संसार का जो मान्यता जो मसीही परिवारों में घुसेगा Disobedient means indiscipline. और जो है अनुशासन की कमी होना शुरू होगा Their walk is gone for a toss. यानी कि उनका मसीही चाल जो है जो बदलेगा They are no more listening to their parents. They think their parents are old-fashioned. जिसकी वजह से वो माता पिता की बातें नहीं मानेंगे वो सोचेंगे कि माता पिता तो पुराने जमाने के हैं They feel that because now they are earning, they have charge. या फिर जो बच्चे सोचते हैं ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं ऊंचा उठ गया हूँ अपने माता पिता से भी Disobedient is also disloyal. और वो जो है दूसरों के प्रति जो है उनकी विश्वसनीयता
चली जाती है। There has been a rebellious heart that is working inside of them against parents. Parents is authority figure. Again, I'm saying. और अपने माता पिता के जो है विरोध में जाते हैं, क्योंकि अब वो उनके अंदर से वो जैसे घमंड जैसा उभरा है, जिसकी वजह से वो ऐसा करना शुरू करेंगे। We need to also at this time speak to parents, that parents pray for your children. और इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना जारी रखना जरूरी है। So we need to see the next one is unthankful. अगला है अकृतज्ञ होना। What is unthankful? अकृतज्ञ होना यानी कि क्या? Ungrateful people. मतलब कि दूसरे जो करते हैं उसके लिए धन्यवादित हृदय नहीं रखते। They forget all that you have done for them. मतलब लोगों ने जो उनके लिए किया वो सब वो भूल जाते हैं। Because they have become ungrateful. This is the sign of the evil one things upon their lives. क्योंकि जो है शैतान की ओर से जो दुष्टता आती है उनके हृदय में, उसकी वजह से दूसरे जो भलाई किए हैं वो सब भूल जाते हैं और उनके हृदय में उनके प्रति धन्यवादित हृदय नहीं होता है अभी। There is no sense of gratitude. और जो है दूसरों ने जो किया है उनके लिए, उसकी वजह से उनके प्रति जो है कोई प्यार या आदर नहीं है। See, Apostle Paul is saying in 1 Thessalonians 5:18, no matter what happens, always be thankful. इसलिए 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा गया है कि बजाय इसके कि क्या हो रहा है, हमेशा धन्यवादित हृदय रखो। So you will see ungrateful people. तो ऐसे लोग जो धन्यवादित हृदय से नहीं जीते हैं, दूसरों के प्रति कि लोगों ने तुम्हारे लिए क्या किया है, ऐसे लोग ज्यादा दिखने को We don't have to go very far. We will see in our midst a lot of kind of things happening. लिखा गया है ये सब जो है दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चारों ओर ही ऐसे लोगों को देखने को आपको मिलेगा। So we need to understand they will come against even those who have helped them. यानी कि दूसरों ने जो उनके लिए किया है, जो मदद किया है या जो भी किया है, वो सारी बातें भूल जाएंगे कि उन्होंने इतना किया है उनके लिए। This is the works of the flesh. क्यों ऐसा होगा? जो है शारीरिक लालसाओं में फंसने की See, वजह when से। the enemy comes in, he brings his character inside. क्योंकि जब शैतान कार्य करना शुरू करता है तो उसके गुण आना शुरू होता है। We must check all these things. और इसीलिए ऐसी बातें के प्रति चौकन्ना रहना पौलुस कह रहा है। You know, a pneumonia, sickness just doesn't come like that. It comes with symptoms, with cold, with cough, with lot of things that happen, congestion. It all symptoms are shown. These are symptoms. जैसे निमोनिया होने से पहले जो है सर्दी, खांसी, छाती में सारा जो पानी जो है जो सर्दी भरता है, तो ये सब जैसे जैसे होता है एक एक चिन्ह दिखाई देता है, तो बाद में जो डॉक्टर आखिर में कहते हैं कि निमोनिया हो गया। Then there is something called unholy. अगला है अपवित्र। Just the opposite of what God wants us to be. यानी कि परमेश्वर कहते हैं हमें जो पवित्र होना है हम उसका उल्टा करते हैं, अपवित्र होते हैं। Unholy means wicked. अपवित्र यानी कि दुष्ट हो जाते हैं। Evil thinking, thoughts are evil. सोच दुष्ट हो जाते हैं। Forget about the words. They have so much dirt within that it comes out. Sometimes God is refining, I'm saying, the church. और जो है शब्दों से ही नहीं लेकिन उनके हृदय में से भी दुष्टता निकलता है। सोच में, शब्दों में, कार्यों में जो है पूरा जैसा होना चाहिए पवित्र, उसका बिल्कुल उल्टा गुण उनका होता है। Look around the news everywhere. आजकल अगर आप टीवी पे देखेंगे तो खबरों में ये सारी बातें दिखाई देती हैं। And check how much godliness is there. तो आज हमें जांचना है कि हमारे बीच कितनी पवित्रता है। Still I am saying there are few good people out there. फिर से हम कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वसनीयता में अभी भी जी रहे हैं। But men will lose all regard for decency. That means unholiness. लेकिन वचन कहता है कि बहुत लोग आखिरी दिनों में अपनी शराफत खो देंगे। All type of corruption. हर प्रकार का भ्रष्टता उनके अंदर आएगी। They will be blind to modesty. और जो है वो विनम्रता छोड़ देंगे। There will be no purity.
उनके अंदर जो पवित्रता खत्म होगा There will be unrighteous acts that are committed. और जो है अधार्मिक कार्य करना शुरू So करेंगे। that's why wickedness would increase. इसीलिए भ्रष्टता उनमें जो बढ़ेगी। The ninth one is without natural affection. अगला है प्यार रहित, That means breakdown in family life. यानी कि पारिवारिक जीवन में विश्लेषण The होगा। enemy comes to steal, kill, and destroy. शैतान आता है नाश करने, चोरी करने, That means there would be abandonment. यानी कि जो है चीजों का त्याग होना शुरू हो जाएगा। Children will leave their parents just like that माता पिता को जो बच्चे ऐसे ही छोड़ देंगे to fend for themselves. ताकि जो है जो माता पिता खुद के बारे में ही देखे, मैं अपने बारे में सोचूंगा। There would be abuse. और जब हम देखेंगे चारों ओर दुर्व्यवहार दिखाई देगा, The attack would be on the family. यानी कि आक्रमण सीधे परिवारों के विरोध में होगा There would be abortion, और गर्भनाशक चीजें दिखाई देंगे। infidelity, adultery would increase. बेवफाई ज्यादा दिखने को मिलेगी There would be perversion, और विप्रतिपता दिखाई देगा। worse than the days of Noah. यानी कि नूह के दिनों में जो दुष्ट लोग थे उससे भी कई गुना ज्यादा दुष्ट इन आखिरी दिनों में लोगों को देखने को So we मिलेगा। need to understand that all this comes down without natural affection. ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि उनके हृदय में प्यार नहीं बचा The things of God has just gone off. और परमेश्वर के सारे गुण जो उनके अंदर थे वो अब नहीं है। Number 10 is unforgiving. 10वां है क्षमा रहित, Those who will never keep their promises. It is also called truce breakers in another version. और वो अपने वादों के प्रति विश्वसनीय नहीं रहते। So we need to understand that unforgiving is so going to be rapid that people will not have a sense to forgive others. और क्षमा रहित लोग बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि वो दूसरों को क्षमा ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि बार बार जो है उनके ऊपर जो है दोष लगाते रहेंगे, क्षमा करने के लिए जो है वो इच्छा भी नहीं रखेंगे। See, this is the one of the important things that we need to check and re-examine in our lives. ये सारी बातें एक एक करके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन को जांचना है और देखना है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में तो नहीं आई है। No matter what, we need to come regularly at the altar and say, God, forgive me. और इनमें से अगर कोई भी बात थोड़ा भी हमारे खुद के जीवन में अगर दिखाई दे तो हम तुरंत ही परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगे ताकि हम को यीशु के लहू से शुद्ध किया जाए। We may have some weaknesses, हो सकता है हमारे जीवन में कमजोरियां हो, but we will submit these areas to God and say, God, you help us. We surrender. जहाँ कहीं भी गड़बड़ियां हैं हमारे जीवन में वो सारे हमारे जीवन के क्षेत्र परमेश्वर के हवाले कर कर परमेश्वर से मदद मांगे कि हम बदले। So here in forgiveness, the enemy comes and tries to destroy that person. तो यहाँ क्षमा रहित लोग दूसरों के छवि को नाश करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। The 11th one is slanderers. अगला है मानहानि। Now this means false accuser. इसका मतलब है कि वो दूसरों पर गलत दोष डालते हैं। Now here the devil uses such kind of people to destroy the name and reputation of others. यानी कि जो है शैतान ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है दूसरों की इज्जत मिट्टी में जो मिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। They become actually a vessel of the enemy to be used against servants of God, against authorities. यानी कि ऐसे लोग जो शैतान के लिए जो पात्र हो जाते हैं ताकि जो है परमेश्वर के सेवकों के विरोध में वो जाए। The other name for devil or Satan is slanderer.
और शैतान का जो है दूसरा नाम मान हानि करने वाला भी है। So they are actually doing the devil's work. यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए कार्य करते हैं, वो शैतान का कार्य करते हैं। That's why gossip and rumoring is very bad. और इसीलिए जो है दूसरों के बारे में गलत बातें करते रहना या गलत दोष लगाते रहना, ये पाप है। The 12th one is without self-control, अगला है असंयमी, compromising. यानी कि हमेशा समझौता करते हैं। They have lost track of every kind of discipline. यानी कि हर अनुशासन को छोड़ दिया है। They want to live their own life. मतलब वो खुद की इच्छा की तरह अपना जीवन बिताना चाहते They हैं are not ready to listen to someone else. और दूसरों जो कहते हैं उनको सुनना उनको पसंद नहीं। They do not want good counsel, God counsel. और दूसरों से जो है धर्मी सलाह सुनना नहीं चाहते। Such kind of people are powerless. ऐसे लोगों के अंदर कोई शक्ति नहीं बचती, They have lost their common sense too. क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग का संयम खो दिया है। We go to the next, that is called fierce. अगला है उग्र, Fierce means untamed. यानी कि अनियंत्रिता, Literally, they are like wild animals. यानी कि क्रूर जंगली जानवर जैसे हो गए। Violent, ऐसे जो बहुत ही क्रूर हो गए हैं दूसरों के प्रति, foul language. और फिर कुछ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते रहते They'll हैं। go beyond and say things to you you would never ever imagine. यानी कि वो घूमकर ऐसी बुरी बातें तुमसे कहते हैं जिसकी अपेक्षा भी शायद आपने नहीं किया होगा उनसे। That's why that time that we need to just zip up. और इसलिए जब ऐसा होता है और लोग आपको ऐसे गलत इल्जाम आप पर लगाएंगे, तो सबसे अच्छा है कि आप चुप रहो, There are people who will provoke you. क्योंकि ऐसे लोग जो है तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम कुछ गलत करो। We have to be done with such kind of people. और ऐसे लोगों को अपने से दूर करो, Otherwise, they will spoil your spiritual walk. नहीं तो उनकी वजह से आपकी आत्मिक चाल खतरे में They आएगी, have already been disconnected. क्योंकि वो खुद तो धर्मी रास्ते से निकल चुके They have हैं gone to a spiritual low. और वो उनका आत्मिक जीवन जो है घट रहा है। In the outside world, you can see it much more. और दुनिया में, संसार में तो ये देखने को ही मिलता है It हमेशा। has different faces. लेकिन इसके स्तर अलग अलग है। Kinds of like rape, like robbery, like all types of murder. It's all coming from fierceness. और ये सारे जो है क्रूर चीजें जो दुनिया में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें शैतानी गुण से जुड़े हैं। In fact, the word for fierce is brutal in the Greek. और यह है यूनानी शब्द में जो है उग्र का मतलब है क्रूर होना, Merciless. यानी कि दूसरों के प्रति हृदय में कोई दया ही नहीं, No mercy at all. यानी कि बिना दया के दूसरों को नीचे गिराना। See, Apostle Paul is giving us so much evidence of what is going to happen in the future. हम देखते हैं इतने सारी स्पष्टीकरण पौलुस दे रहे हैं, आखिरी दिनों में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पौलुस ने कहा है ये। Verse 14, despisers of good, 14, भले के बैरी, against those who take a stand on biblical lines. और जो लोग बाइबल के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में वो काम करना शुरू करते हैं। You will see this happening time and time again. और ये हम बार बार हमेशा देखते हैं You will see people ditching you. कि लोग आपको धोखा देते हैं, So all these things are going to happen. और ये सारी चीजें होंगे। Don't be surprised, it will be painful. अचंभित मत होना जब लोग आपको धोखा देंगे या गलत इल्जाम जो लगाएंगे आपके ऊपर, या फिर आप जब बाइबल पर दृढ़ खड़े हो तो आपके विरोध में बातें They कहेंगे, will despise you. क्योंकि वो आपको जो है नकारेंगे, आपका जो बुरा चाहेंगे। You know, the Bible says they will put you out. लिखा है कि वो लोग आपको बाहर डाल देंगे। Not to worry. फिर भी आप चिंता मत We करो, just need to be connected with the Holy Spirit at all times. ये सब चीजों का सामना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के करीब रहना है। Dear people of God, the church belongs to Jesus and Jesus alone. कलीसिया और
कलीसिया से जुड़े हुए लोग परमेश्वर के लोग हैं। The church is not man's property. कलीसिया किसी मनुष्य की संपत्ति नहीं है। The church is the body of Christ where Jesus is the head. कलीसिया मसीह का देह है जिसका सिर यीशु मसीह खुद है। We can't break rules, regulations and principles that are governed by the Holy Spirit in the church. और इसीलिए कलीसिया के ऊपर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करना जो है जरूरी है। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी काम करना जो है नहीं जाना है। Then there are traitors, विश्वासघाती लोग भी होंगे, betrayers, ऐसे लोग जो धोखा देंगे आपको, people who will break friendship just to get their own way. जो मित्रता को तोड़कर जो है वफादारी में नहीं चलेंगे, Just to show that they are trying to show that they are right. वो सिर्फ ये कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ। Everything is fake. और लेकिन हम देखते हैं उनके हृदय से जो निकल रहा है, जो वो दिखा रहे हैं, सब धोखा है। That's why we need to understand and discern the times are getting bad. और इसीलिए हमें पहचानना है क्योंकि आखिरी दिनों में समय बहुत बुरा होगा। There will be no loyalty whatsoever. क्योंकि दूसरों के प्रति वफादारी नहीं होगी। That means there will be no proper kind of faithfulness. यानी कि विश्वसनीयता देखने को बहुत ही कम दिखाई देगी। 16 is headstrong. 16 है धीट होंगे, What it means, they are reckless. यानी कि लापरवाह होंगे, They become rash. यानी कि अविवेकपूर्ण होंगे। Their speech also is changed. उनका You will- बोलने का तरीका भी बदलेगा। Whenever people are telling you or speaking to you, you will come to know exactly, you need to just discern. और ऐसे लोग जब अपना मुंह खोलकर कुछ बोलेंगे तो आपको पहचान लेना है कि ये दुष्टता से निकल रहा Keep है। them far away from you. और ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना जरूरी है इन दिनों में। So we need to be very, very careful and tactful. और इसलिए बहुत ही चौकन्ने रहकर अपना जीवन जियो। See what is coming out. They are spewing venom against someone. देखो अगर कोई जो है किसी के मुंह से अगर दूसरों के प्रति जहर अगर उगल रहे हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को दूर रखो। They are acting without reasonable thought. क्योंकि वो बिना सोचे समझे बोलते जाते हैं गलत चीजें। That's why when you tell something to someone, you need to understand that, and someone is just accepting something without anything, that means you are accepting that same spirit, that influence of that spirit into your life. क्योंकि अगर कोई अपने मुंह से गलत चीजें, दुष्ट चीजें बोलता है दूसरों के प्रति जो गलत है, आप अगर उनकी बातों को सुनेंगे तो वो ही दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर कार्य कर रही है वो ही आपके जीवन में भी आकर कार्य करना शुरू करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसमें कब गिरे। The spirit of Python is at work. क्योंकि ये पाइथन की जो सांप की आत्मा जो है, ये जो दुष्ट आत्मा कार्य करती है लोगों के विरोध में। So next one is haughty, अगला है घमंडी, high-minded. यानी कि अविनयी। They think they're too smart. वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। Over smart people. ये सोचते हैं कि मैं तो चतुर हूँ। They are puffed up with a sense of their own self-importance. वो खुद के बारे में ही ऊंचा सोचते हैं, दूसरों के बारे में जो है बुरा सोचते See, haughtiness and pride, it always moves together. They're like cousin brothers. और ये जो है घमंडी और अविनयी होना, ये जो है दोनों गुण एक होने की तरह दिखते हैं। They think they are better than others and the whole world. वो सोचते हैं कि दूसरों से मैं ज्यादा चीजों को जानता हूँ, मुझे ज्यादा जो समझ है। They think that only they are good. सोचते हैं कि वो ही अच्छे हैं, बाकी सारे लोग बुरे हैं। This is what I'm trying to say. ये हम आपको जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इसका मतलब क्या है घमंडी They होना। show that they are pseudo-spiritual. वो दिखाते हैं कि वो धर्मी है, लेकिन असल में वो धर्मी है नहीं। It is pretense. In the last days, there's going to be so much pretense, so much fake. We really need to discern. ऐसे लोग सिर्फ दिखाते हैं कि वो धर्मी है, परमेश्वर के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, वो धर्मी जीवन जी रहे हैं, सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उनके हृदय से वो धर्मी है नहीं। They may use the name of the Lord. शायद वो परमेश्वर का नाम भी इस्तेमाल करेंगे, Shameless.
यानी कि बहुत ही बेशर्म जैसे जीवन, That means wickedness is getting increasing. यानी कि दुष्टता ज्यादा बढ़ रही है। These are the characteristics that we will see all around. और ये सारे गुण, दुष्ट गुण देखने को मिलेंगे आखिरी दिनों में, बाइबल कहता है। So we need to see the next one is, that is the last one, lovers of pleasure more than lovers of God. अगला है, लिखा है सुख विलास के चाहने वाले ज्यादा होंगे वो, और परमेश्वर से प्रेम करने वाले कम होंगे वो। The world has come and taken their place in their heart. यानी कि दुनिया के तौर तरीके उनके हृदय पर कब्जा किया है। You know, I've got a version in the TLB version. I just want to read something in verse 5. They will go to church, yes, but they won't really believe anything they hear. 5वें वचन में जो लिखा गया है, इसका मतलब है कि वो कलीसिया तो जाएंगे, लेकिन जो है सच में जो संदेश वो सुनते हैं उस पर वो असल में विश्वास नहीं करते हैं। सिर्फ कानों से सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं उस वचन पर। Don't be taken in by people like that. TLB version. ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में लागू नहीं करते हैं विश्वास को, ऐसे लोगों को अपने से दूर रखो। So having a form of godliness, यानी कि वो धर्मी है ऐसे दिखाते हैं, but denying its power. लेकिन असल में धर्मी के गुण, धर्मी होने के गुण असल में उनके हृदय में है नहीं। See, it says, deceiving the very elect. Sometimes we think, elect means only one great person will deceive the elect. It's not necessary. It will be someone down the line can also deceive the elect. तो जब बाइबल कहता है कि आखिरी दिनों में जो है चुने हुए लोग भी धोखा खाएंगे, यानी कि ये सिर्फ जो है जो मुख्य स्थानों पे है वो ही धोखा खाएंगे, ये नहीं लिखा है। लिखा है कि चुने हुए लोग, यानी कि सारे लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, यानी कि कोई भी हो सकता है जो चुने हुए लोग, वो धोखा खा सकता है। चौकन्ने रहो। Coming back to the lovers of pleasure, it means entertainment. और फिर अगला लिखा है कि जो मनोरंजन में होंगे, Partying, drinking, यानी all कि- sorts of vices. पार्टी करना, शराब पीना, ये सारी गलत चीजों में, आदतों में फंसेंगे। So there will be deception, a deceiving spirit. यानी कि धोखा देने वाली आत्मा में फंसेंगे There will be a denial of Jesus Christ. और यीशु मसीह को नकारेंगे भी। What they say is different than what they do. कहेंगे मुंह से कुछ और कार्यों से करेंगे कुछ। We need to be very careful. These are the 18 characteristics in the last days. ये 18 गुण, दुष्ट गुण लिखा गया है आखिरी दिनों के बारे में, जो वर्णन दिया गया है कि ऐसे लोग दिखाई देंगे आखिरी दिनों में। चौकन्ने रहो अपने मसीही जीवन को लेकर। There could be much more than this also. शायद इससे भी ज्यादा दुष्ट गुण देखने को मिले, People will be crafty. क्योंकि लोगों की सोच ही दुष्ट हो जाए। The enemy, the serpent, was crafty in the Garden of Eden. जैसे ईदन के बगीचे में शैतान जो आया था, दुष्ट सोच लेकर आया था। Be careful what you hear. इसलिए आप ध्यान दो, जो लोग आपसे जो बातें करते हैं, वो बातों पर ध्यान दो कि वो गलत है या सही है। Don't accept anything as if you are having some pudding. कोई भी कुछ भी कहे, उन बातों को आपको ऐसे ही निगलना नहीं है। Check, see the fact, see the reality. कोई It भी- may look also right, but it may not be right. कोई भी आपसे कुछ भी कहे, उस चीजों को मानने से पहले आप जांचो कि वो बात सही भी है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीजें ऐसे आपके सामने प्रकट करे ये दिखाने के लिए कि वो सही है, लेकिन आप खुद जांचो, आप खुद देखो कि वो बातें सही है सच में कि नहीं। Let me tell you, in these last days, there is a counterfeit spirit and a familiar spirit that is also operating. क्योंकि इन आखिरी दिनों में जो है धोखा देने वाले प्रकटन भी देखने को मिलेंगे, They will try to remove people from the church. और ऐसा करके लोगों को कलीसिया के बाहर निकालने की कोशिश By करेंगे। telling stories. गलत
जो है कहानियां जो बताकर लोगों को कलीसिया से दूर करते हैं ऐसे लोग। Actually, their aim is they have jealousy in their hearts. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके हृदय में दूसरों के प्रति जलन होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते We हैं। need to be very careful. और इसीलिए हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है कि जलन को आने अपने हृदय में नहीं देना है। That's why we need God's protection at all times. और उसके लिए परमेश्वर की ओर से सुरक्षा कवच हमेशा पहन लो, नम्रता में रहो। And if there are times where we have fallen into anything of these, say, God, I'm sorry. और अगर ऐसी चीजों में अगर हम गिर गए हैं, दुष्ट चीजों में, तो परमेश्वर के सामने आकर हम परमेश्वर से क्षमा मांगे कि हमने ये किया है। But those who have a corrupted heart, mostly they are unwilling. लेकिन जिसके हृदय दुष्ट है, वो उनके अंदर से आता ही नहीं है कि मैं अंगीकार करूं कि मैंने गलती की है। उनके अंदर से वो मान्यता आती ही नहीं। That's why Paul is informing Timothy about these are the things, be careful. और इसीलिए पौलुस स्पष्टीकरण देके तिमोथी को बता रहा है कि ये सारी चीजें होने वाली है, अपनी आंखें खुली रखो, चौकन्ने रहो। ऐसी चीजें जब होती है तो चौकन्ने रहकर अपना मसीही जीवन जियो। People's minds will be corrupted. If you see verse 8, Janes and Jambres resisted Moses. क्योंकि उनका मन भ्रष्ट होता है, जैसे 8वें वचन में लिखा है, जेम्स और जैम्ब्रिस ने मूसा के विरोध में कार्य किया And they disapproved concerning the faith. और उनके विश्वास के बारे में जो है चीजों को नकारा। There is a spirit operating. यानी कि दुष्ट आत्मा यहाँ कार्य कर रही थी। But such kind of people will progress no further. That's straight away. ऐसे लोग सफल नहीं होंगे। For their जीवन में। folly will be manifest to all, क्यों? as theirs also was. क्योंकि जो है उनका जो गलती आखिर में उसका खुलासा होगा ही कि भ्रष्टता उनके अंदर आई। Don't become a prey to this kind of a spirit of Janes and Jambres. और ऐसे धोखा देने वाले आत्मा और जो है विद्रोह करने वाले आत्मा के पकड़ में मत फंसना। But let us come faithfully and come humbly to the altar and surrender our lives to God. लेकिन विश्वसनीयता में, नम्रता में परमेश्वर के सामने जाकर खुद को रखना। In spite of all this, the Church of Jesus Christ will expand and is already winning. और इस सारी चीजों के बावजूद कलीसिया जीतेगी जरूर। Praise God that we are on the winning side. और प्रभु को स्तुति के प्रभु ने हमें जीत के रास्ते पर रखा है। There will be people who creep in to defile the body of Christ. ऐसे लोग कलीसिया में घुसेंगे जो यीशु मसीह के देह को अपवित्र करने की कोशिश करेंगे। They will jump from here to there in these days. और इन दिनों में वो यहाँ से कूदकर वहां जाएंगे, वहां से कहीं और कूदकर जाएंगे, ऐसे वो होंगे। Trying to cause destruction in the body of Christ. और कलीसिया के अंदर जो है गड़बड़ियां करने की कोशिश करेंगे। We must able to recognize the spirit that is behind. और जब ऐसा हो रहा होगा, आप देखोगे तो आप पहचान लो कि ये दुष्ट कार्य है जो शैतान की ओर से है। But we must continue to be joined and united and look up to our God, our Father, and give Him glory. लेकिन हमें अपना ध्यान परमेश्वर पर ही रखना है और सारे कार्य हमारे कामों में और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा दे, ऐसे कार्य ही करने। Don't lose your peace. कुछ भी हो जाए उससे आपकी शांति आपको नहीं खोना है। May God bless you. परमेश्वर आप पर अपनी आशीषें रखे। May God comfort you. और परमेश्वर आपको सांत्वना देंगे। May God lift you. परमेश्वर आपको उठाएंगे। Stay attached to the things of God. परमेश्वर के चीजों के करीब रहो। Stay attached to the family of God. परमेश्वर के सही परिवार के करीब रहो। I encourage you, brothers and sisters. और इसीलिए
आज हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं प्रभु में। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है, He has called you by name. नाम लेकर आपको पुकारा He है, has ordained you. उसने आपको अभिषिक्त किया You are born again. और आपका नया जीवन हुआ है। Continue to grow in Christ. अब इस नए जीवन में आपको और परिपक्व होना We है have to be refined by God. और परमेश्वर के द्वारा हमारा जीवन में जो पवित्रकरण जारी रखना है। As David says, Lord, you search me. जैसे दाऊद ने कहा कि प्रभु आप मुझे खोजो, Today we will say, God, you search me. आज हम प्रभु से कहेंगे प्रभु आप मेरे अंदर खोजो कि कुछ गलत है We मेरे all अंदर। have some weakness or the other. क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है, But we are not to accuse someone. लेकिन उसकी वजह से किसी के ऊपर गलत दोष नहीं लगाना We है, are not to condemn someone. किसी को जो है नीचे नहीं गिराना We है, are not to judge someone. या किसी पर न्याय नहीं करना है, But we need to show love. लेकिन जो है प्रेम से दूसरों के प्रति व्यवहार So करो। may God bless you. तो प्रभु आपको आशीषित रखे May this message sink deep within. और आशा करते हैं कि ये संदेश आपको अच्छी रीति से इसकी समझ आए And give us an understanding of how the coming days will crop up. और प्रभु हमें तैयार रखे ऐसे दुष्ट दिनों का सामना करने के लिए ताकि हम विश्वसनीय रहे। May God bless you. प्रभु आपको आशीषित रखे Until we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे। Shalom. शलोम आपको।